is listen. Today's assignment is you have to perform the stock Tesla stock in detail analysis with the forecasting. So for that purpose, you have to open assignment number 10 in detail. The assignment is given there. You have to download the data set. Just click on that. You will get the data set. So in this data set, the date wise stock market, Tesla stock opening date, closing date, adjacent closing date, as well as the total volume in that particular day or date is given. So you can see the data in this way. You have the date column, the stock opening at 9:15 a.m. on what price that particular stock is opened on that particular date, and at 3:30 what was the closing price of that stock. Then in between high and low. So after the 9:15 to till 3:30 p.m. what is the fluctuation in the data? What was the high of that day and what was the low of that day? Then on what price that stock is closed on that particular day, the adjacent closed price of that particular stock, as well as the total volume, means how many stocks are sold out or how many stocks are bought by the investors. So this is the data. Date wise data is given. So we have the period data, and if you have the period data, you can perform the forecasting. Forecasting is nothing but on the basis of the historical data, you can perform the period wise data analysis in detail, as well as on the basis of historical data you can tell something about the future. So you can predict on the basis of the historical data. So we are going to perform the data analysis, data visualization, as well as we are performing the prediction, or you can say we are performing the forecasting on our Tesla stock market stock by using the Power BI. So download this data set. You can download this data set and come back to the Power BI. You have taken the blank report. Now you have to upload your data set. So choose the option upload data set, or you can choose the get data, and from that get data you can select your file. So select this. You can find your file where it is downloaded. You can find it from the appropriate location. एंड आपको ये फाइल यहाँ पे दिखेगी नहीं, क्योंकि ये एक्सेल डायरेक्ट एक्सेल शीट नहीं है, ये सीएसवी है, मतलब इसका फॉर्मेट जो है वो सीएसवी वाली फाइल है. सो यू हैव टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स. When you click all files, then only the CSV file you can find here, and you have to select that file, click open. That file will start to upload to the Power BI. और जैसे ही लोड ऑप्शन कंप्लीट होगा आपका, मतलब लोड प्रोसेस कंप्लीट होगा, योर फाइल विल गेट अपलोडेड टू दी यू हैव द ऑप्शन टू लोड इट directly to the Power BI. So when you click on the load, you can see your data set here. At the right side, in the data option, you can see your data. So when you click on this arrow, you can see the various columns already there. You have seen it in your original data set. So you have the date column, you have the open column, you have the high and low, in between the start price and close price, what is the high and what is the low, and the total volume. So these columns you can see at the right hand side of the data option. So what you have to do, first thing, once you upload your data set, what you have to do,
you have to perform the data pre-processing. You have to check whether or not your data is proper. So you will use the data transform option. Click here to transform your data, and one by one you have to check whether there are any null values. So how you will check the null values or empty rows or blank rows? So you have the column drop down arrow, you can select it and you can see here any null value or empty or special character is there. If it is available, then you can see at the first, शुरू में ही आपको वो दिखाई देगा. तो यहाँ पे शुरू में डेट छोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? Your column is proper, no need to perform any pre-processing. इसी तरह से you have to complete all the columns to check any empty row is there, any special character is there, any null value is there, any blank value is there. सो यहाँ पे शुरू में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये भी कॉलम आपका प्रॉपर है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी प्री प्रोसेसिंग ऑन योर डेटा. इसी तरह से ये कॉलम भी देखो. So there is no any empty, null or special character. Come to the low column. Check any null value. You cannot see any null value, special character. Come here to the close. Close में भी आप देख सकते हैं है क्या null value? No any null. So your data is proper. यहाँ पे आपका ADJ close इस तरह से ये कॉलम का नाम आया था. इन योर ओरिजिनल डेटा सेट द कॉलम नेम वाज एडीजे क्लोज एडीजे प्राइस या क्लोज प्राइस. सो उसको करेक्टली लिखो एडजस्टेड क्लोज प्राइस. सो यू कैन रीनेम दिस कॉलम विथ एडजस्टेड क्लोज प्राइस. इसमें देखो डेटा प्रॉपर है क्या? एनी नल वैल्यू? नो एनी नल वैल्यू. अगर होती है तो शुरू में ही दिखती है. सो एडजस्टेड क्लोज प्राइस वाला कॉलम प्रॉपर है. नाउ यू कम टू दी वॉल्यूम वाला कॉलम एंड इसमें भी आप चेक कर सकते हो नो एनी नल इज देयर. ओके, सो इतने सारे कॉलम्स हमने चेक कर दिए. ये तो कस्टम कॉलम है, ये मैंने ऐड किए हैं. अभी आपको रुकना है थोड़ा कस्टम कॉलम ऐड करने के लिए. नेक्स्ट टास्क, वंस यू आइडेंटिफाई द नल, स्पेशल कैरेक्टर और एनी एम्प्टी और ब्लैंक रो in that particular column, if it is clear, if it is okay, then your data is proper. No need to perform the pre-processing. अभी आपको क्या करना है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप आपको चेक करना है. You have to check the data type. So in the transform tab you can find the data type. यहाँ पे देखिए, click on the transform tab और मेनू, you can see the data type. सो डेट वाला जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या दिखाई दे रहा है? बाय डिफॉल्ट इट इज डेट. सो नो नीड टू चेंज. सेकेंड वाला कॉलम देखो, ओपन प्राइस ऑफ दैट टेस्ला स्टॉक. सो डेटा टाइप इज गिवन डेसिमल. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज. हाई वाला कॉलम देखो, डेसिमल, नो नीड टू चेंज. देन लो वाला कॉलम, इट इज अगेन डेसिमल. लेकिन डेसिमल वहां पे दिया है, डेटा डेसिमल का है क्या ये भी आपको चेक करना है. ये डेटा भी डेसिमल का है और उसका डेटा टाइप भी बाय डिफॉल्ट डेसिमल है, तो नो नीड टू चेंज. अगर नहीं होता तो यू कैन क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड यू कैन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप. उसी तरह से क्लोज वाला कॉलम, इट इज डेसिमल, डेटा डेसिमल ही है और उसका डेटा टाइप भी डेसिमल दिया है तो प्रॉपर है. नो नीड टू चेंज. ये वाला कॉलम भी डेटा, इट इज होल्डिंग द डेसिमल डेटा एंड इट्स डेटा टाइप इज आल्सो डेसिमल, सो नो नीड टू चेंज. वॉल्यूम वाला डेटा, यू कैन सी इन द वॉल्यूम वाला डेटा कॉलम whole numbers are there, so whole numbers are storing in this column and you have to check the data type is also whole number, so no need to change. समझ में आया?
अभी हमें क्या करना है, ये तो हो गया प्रॉपर। टेबल का नेम चेंज करना है क्या वो आपको? अगर करना है तो आप उसका बीच का अंडरस्कोर निकाल के उसको रिनेम कर सकते हैं। टेस्ला स्टॉक डेटा सेट ऐसे भी उसको रिनेम कर सकते हैं। हाउ यू कैन रिनेम? टेबल को आप कैसे रिनेम कर सकते हो? डायरेक्टली डबल क्लिकिंग और राइट क्लिक एंड रिनेम ऑप्शन। दो ऑप्शन है, यू कैन डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन इट एंड यू कैन रीनेम द नेम, और राइट क्लिक एंड रीनेम ऑप्शन। मैं वैसे ही रख रही हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है? आपको डेली प्राइस चेंज एंड डेली प्राइस चेंज इन परसेंटेज, ये दो कॉलम आपको ऐड करने हैं। सो वी हैव टू ऐड द कस्टम कॉलम्स टू आवर डेटा सेट्स। On the basis of the historical data, we can create the custom columns and we can fill all the rows based on the previous data, historical data. So उसके लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है, ऐड करना है न्यू कॉलम। सो क्लिक ऑन न्यू कॉलम, ऐड कस्टम कॉलम। You will add custom column and what you will do? यहाँ पे उसका नाम दे दो। क्वेरी क्वेरी ओपन होगी, क्वेरी बॉक्स ओपन होगा। सो इन द क्वेरी बॉक्स जैसे ही न्यू कॉलम, कस्टम कॉलम, ऐड न्यू कॉलम या कस्टम कॉलम पे क्लिक करोगे, ये वाला है ना, ये वाला कस्टम कॉलम पे क्लिक करना है आपको। ऐड कॉलम्स, उसमें आएगा कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम को जैसे ही क्लिक करोगे ये क्वेरी बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू फिल ऑल द रोज ऑन द कैलकुलेशन, है ना। वो क्या कैलकुलेशन होगा? हम कॉलम कौन सा क्रिएट कर रहे हैं? डेली प्राइस चेंज। सो गिव द नेम फॉर योर कॉलम एंड व्हाट यू हैव टू डू टू चेक द डेली प्राइस चेंज। मॉर्निंग में स्टॉक ओपन हो रहा है और इवनिंग में मतलब 3:30 को स्टॉक मार्केट क्लोज हो रहा है। सो जितने प्राइस में वो क्लोज होगा उससे ओपनिंग प्राइस माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डेली प्राइस चेंज। समझ में आ रहा है? मॉर्निंग में स्टॉक मार्केट ओपन होता है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, आपको पता है। मॉर्निंग में मार्केट शुरू जब होता है तो प्राइस on a particular stock on a particular price it will be opened and in between, और वो क्लोज कब होता है मार्केट? 3:30 को। तो 3:30 को कौन से प्राइस पे वो क्लोज हो रहा है, मॉर्निंग में कौन से प्राइस पे वो ओपन हो रहा है, ये दोनों प्राइस को यूज करके यू कैन फाइंड आउट द डेली प्राइस चेंज। ओके, सो आपको क्या करना है? इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट आएगा यहाँ पे। आपको यहाँ से आपका कॉलम सिलेक्ट करना है, डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन दैट कॉलम और क्लिक सिंगल क्लिक एंड इंसर्ट बटन, इससे भी हो जाएगा। सिंगल क्लिक एंड नहीं तो डबल क्लिक करो। सो जैसे ही ये क्लोज है ना, क्लोज को डबल क्लिक जैसे ही करोगे, जैसे मैं फिर से डबल क्लिक कर रहे हो, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो इंसर्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है। सो आपने क्या किया? क्लोज माइनस ओपन, उसको ओके करो। क्लोज प्राइस माइनस ओपन प्राइस, इससे जो कैलकुलेशन क्लोजिंग प्राइस जो कोई भी है हर दिन में, ओपनिंग प्राइस जो कुछ भी है हर दिन में, उसका माइनस जो वैल्यू आपको मिलेगी वो है डेली प्राइस चेंज। इट मे बी इन प्लस और इट मे बी इन माइनस। ओके करो, आपका वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा। हो गया क्रिएट। उसी तरह से आपको क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कितने परसेंटेज से। आप देखते हो ना, आपका स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो तो उस स्टॉक में डेली कितना परसेंटेज हाइक मिल रहा है या कितना परसेंटेज मार्केट डाउन जा रहा है, वो परसेंटेज में आपको डेली का दिखता है।
और वो परसेंटेज से ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज भी होता रहता है, क्योंकि लाइव मार्केट पे वो डिपेंड रहता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे 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 प्राइस डिक्रीज हो जाएगा वो परसेंटेज जो है स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन वो परसेंटेज आपको इमीडिएटली चेक करने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको परसेंटेज में, अभी ये तो टोटल वैल्यू में दिखाए आपने निकाला कि क्या है टोटल। यहाँ पे गया मेरा, ये है ना डेली प्राइस चेंज। ओके, अभी दूसरा है, एक और कॉलम आपको ऐड करना है और उस कॉलम में आपको देना है क्या, आपके कॉलम का नाम है डेली प्राइस चेंज इन परसेंटेज। आपको देना है डेली प्राइस चेंज इन परसेंटेज। सो हाउ यू विल कैलकुलेट द डेली प्राइस चेंज। सो डेली प्राइस चेंज के लिए आप क्या कर रहे हो, सो डेली प्राइस के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, व्हाट क्वेरी यू हैव रिटर्न, क्लोज माइनस ओपन। So select the close, give the minus, you have to subtract the closing price from the, sorry, opening price from the closing price. So you have to select the close as well as the open, and you have to divide that value by the opening price. Daily price, daily price change, whatever the value you will get, you have to divide the daily price change by the opening value and then you have to multiply it by 100, क्योंकि परसेंटेज आप निकाल रहे हो। क्लिक ओके, क्लिक ओके। ये आपका कॉलम है परसेंटेज चेंज, डेली प्राइस इन परसेंटेज। सो यू कैन फाइंड इट इन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ओके, now whatever the two columns you have created right now, that are your custom columns, you have to check its data type. So come in the data transform, check the data type. It might be given any. We have created the custom column and all the rows of that custom columns are filled on the calculation by selecting a particular parameters or columns. But its by default data type is given as any. So any means we cannot recognize, any means what, it is a text or it is a whole number or it is decimal. So what you have to do, you have to select the decimal, click on decimal and set it to the decimal data type, because you can see it is holding the decimal data type. Okay, now come to the second column again। सेकेंड कॉलम में भी एनी होगा, है ना, इट इज अगेन एनी, बट इट इज द परसेंटेज। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेट इट टू द परसेंटेज, you can set the data type for this custom column where we have calculated the percentage, you can set it to the percentage। नहीं आ रहा है किसका, इसका, यहाँ पे आ गया ना, ये वाला है ना। ओके, ओके आ गया।
ओके, ये हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, कम टू दी होम। इतना प्रोसेस, प्री प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन काफी है। हमारा डेटा इज रेडी नाउ टू परफॉर्म द डेटा एनालिसिस and data visualization. So whatever the changes you have applied on your data set, that should be store or save. So what you have to do, close and apply. If you only close, whatever the changes you applied, it cannot be stored with your data set. It cannot be applied. So close and apply, you have to click. ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने पब्लिश किया है, होम पे है। ऑन होम यू कैन सी one article, extracting the date components in Power BI using DAX. Please listen. Please listen. Those who don't want to listen, they can go outside. ओके, सो सबसे पहले आप अपने डेटा में आ जाओ। डेटा को आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो all the existing column plus customized columns you can see in your data set, and from that data you can see one column, that column is date column। आपको अपने डेटा में डेट कॉलम दिख रहा है। So when you click on the arrow of this date column, you can see the hierarchy of the date। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डेट कॉलम पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करो, फिर और एक है हायरार्की क्रिएट हो रही है, इस एरो पे क्लिक करो। इस एरो पे क्लिक करने के बाद यू हैव द हायरार्की ऑफ दैट डेट कॉलम, and in that hierarchy you can see the date column by default automatically has been separated for the years, for the quarters, for the months and for the day. So you have the different data now, 4 different data you have there automatically or by default created by the Power BI. It is called a date hierarchy or different date components. It is automatically extracted. We have not done anything. You can see the data is extracted from your existing column, and that column is date column. So ये जो जैसे ये ऑटोमेटिकली होता है डेट एक्सट्रैक्शन, उसी तरह से आप मैन्युअली भी कर सकते हो यूजिंग दी डैक्स क्वेरीज। और इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन दी डेट कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन दी पावर बीआई। सो ये इसके ऊपर तो कुछ प्रोसेस आप लिख नहीं सकते, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको एक्सट्रैक्शन मिल रहा है, डेट कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेट कंपोनेंट मैन्युअली, हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट इट? सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्रिएट, यहाँ पे देखिए मैंने आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करके दिया है, बाद में आप इसको आराम से रीड कर सकते हो। वन बाय वन वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट the date component, and what are that date component? First we will go and extract the year, then we'll extract the months, then we'll extract the day number or day name, month number or month name, and then we'll extract the quarter numbers, first quarter, second quarter, third quarter। है ना, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है, अगर आपने कुछ स्टॉक परचेस किया, बाय किया है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में अगर आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आ गया, आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है। सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आ गया, उसने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, आपको डिविडेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो क्वार्टर बेस्ड एनालिसिस आल्सो यू कैन परफॉर्म, बट ऑटोमेटिकली पावर बीआई इज एक्सट्रैक्टिंग द डेट कंपोनेंट्स। But if you want to separately, manually you want to perform and extract the date component, how you can extract it? So let's start to extract the date component from the given date। और ये एक्सट्रैक्ट कब कर सकते हो? इफ यू हैव द पीरियड डेटा, डेट वाइज डेटा अगर आपके हाथ में है, देन ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट द डेट कंपोनेंट्स।
एंड व्हाट आर दैट कंपोनेंट्स? ईयर है, ईयर को सेपरेट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मंथ्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डे नंबर, डे नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मंथ नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्वार्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ पे देखिए मैं इसको मैं पहले बंद कर देती हूँ, ये हो गया। बाकी जितने भी आपको यहाँ पे दिख रही है डैक्स कॉलम है, वॉट एवर द कॉलम्स आई हैव क्रिएटेड, एग्जिस्टिंग कॉलम छोड़ के, कस्टमाइज कॉलम छोड़ के, जितने भी ज्यादा कॉलम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, all that columns I have created using the DAX query and I have extracted the date components from the date column. So one by one एक हम करते हैं। So day को अगर करना है आपको एक्सट्रैक्ट, नहीं सबसे पहले ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। So आपको क्या करना है, ये आपका डेटा सेट है, इसमें राइट क्लिक करो, राइट क्लिक नहीं, थ्री डॉट्स को क्लिक करो, न्यू कॉलम ऑप्शन है, न्यू कॉलम आपको ऑप्शन मिल रहा है, न्यू कॉलम पे क्लिक करो, इट विल ओपन द क्वेरी बार, डैक्स क्वेरी बार ओपन करेगा। न्यू कॉलम को क्लिक करो, नहीं तो कॉलम टूल्स ओपन होता है। न्यू, जैसे ही आपने टेबल को सिलेक्ट करोगे, देखिए ये टेबल मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैंने राइट क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, थ्री डॉट को क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगी, टेबल टूल्स will be available there. From that you can select the new column option. So select new column option, it will open in the query editor, फॉर्मूला बार ओपन करके दे देगा उस आपको। तो उसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे ओपन करके दे रही हूँ आपको, कौन सी क्वेरी ओपन करना है। देखिए आपको ईयर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम योर डे कॉलम, सॉरी डेट कॉलम। सो उसको आप पहले तो अपने कॉलम को नेम दे दो, कॉलम नेम करके आया होगा ना, कॉलम बस दिख रहा है। जैसे ही न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन द क्वेरी एडिटर, कौन सा, डैक्स क्वेरी एडिटर या डैक्स क्वेरी बार ओपन करके दे देगा आपको। उसमें आपको बाय डिफॉल्ट कॉलम करके आया होगा, कॉलम करके आया है ना, उसको आप नाम दे दो ईयर, ईयर दे दो, इक्वल टू सिंबल दे दो, और ईयर इज द फंक्शन, ईयर इज द बिल्ट इन फंक्शन इन द पावर बीआई। सो टाइप दैट फंक्शन नेम, जैसे ही फंक्शन नेम टाइप करोगे, पैरेंथेसिस दे दो, ओपनिंग पैरेंथेसिस, एंड आपको वहां पे सजेशन में आ जाएगा टेबल का नाम, आ गया सजेशन में टेबल का नाम। सो सिलेक्ट दैट टेबल नेम, टेबल नेम आ गया। यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल नेम अलोंग विथ, फिर से मैं कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये हो गया, मैं टाइप कर रही हूँ ईयर वाला, यहाँ पे सजेशन में दिखाई दे रहा है, उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस विल अपीयर देयर, एंड नाउ आई विल सिलेक्ट द टेबल नेम। क्या है मेरे टेबल का नाम, ये है टेस्ला डेटा सेट। अभी टेस्ला डेटा सेट में मुझे कौन से कंपोनेंट से, कौन से कॉलम से आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द ईयर कंपोनेंट, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेट। सो सिलेक्ट दिस डेट, आ गया। ये ओपनिंग ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस, उसको क्लोज करो एंड प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, कॉलम बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको आना है, दूसरा कॉलम क्रिएट करना है। सेम वे you will use the column tool, and from that column tool you will take the new column. For that new column you have to give the month column, you can create the month column as well as month name column। पहले month column create करते हैं। उस कॉलम को आपको रीनेम करना है विथ मंथ, ओके। मंथ में आपको सिलेक्ट करना है मंथ फंक्शन, मंथ फंक्शन,
Okay, and in the month function parenthesis, you have to pass your data set along with the column from which you want to extract the month. Okay, complete that bracket. हाँ, वो सब करना है. ओके, हो गया, बन गया. प्रेस एंटर, press enter, then only your column will create, and we are creating the column with the help of DAX query. ओके, सो कॉलम आपका बन गया. प्रेस एंटर. अभी मंथ के साथ ये मंथ नंबर डिस्प्ले करेगा. मंथ नंबर नहीं चाहिए आपको, मंथ को, मंथ का नाम डिस्प्ले अगर करना है तो यू कैन क्रिएट द क्वेरी इन सच वे दैट, सो यू हैव टू यूज द फॉर्मेट ऑप्शन. दिख रहा है? सेम वे, क्रिएट न्यू कॉलम बाय यूजिंग दिस टूल. कॉलम टूल्स का यूज करके क्रिएट न्यू कॉलम. क्रिएट न्यू कॉलम. रीनेम योर कॉलम विथ, वो जो कॉलम अपीयर होगा उस कॉलम को आप मंथ नेम से रीनेम करो. इक्वल टू सिंबल वैसे की वैसे रहने दो. ओके, देन यूज द फॉर्मेट फंक्शन. use the format function. Okay, automatically parenthesis will appear. अगर नहीं appear हो रहा है तो आपको parenthesis देना है. जैसे ही parenthesis दे दोगे, it will suggest you the name of the table. It will suggest you. Everything will be suggested by the Power BI. It is not required to type anything. है ना, ऑटोमेटिकली मिल रहा है ना आपको. आपको खाली सिलेक्ट करना है वहां से. एंड एक एडिशनल आपको फॉर्मेट देना है. आपको अपना मंथ फुल नेम, जैसे JANUARY जनवरी, DECEMBER डिसम्बर, ऐसे अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको यूज करना है 4 टाइम्स M. 4 टाइम्स M डिस्प्ले, सॉरी, यूज करना है. अगर शॉर्ट नेम डिस्प्ले करना है यू कैन यूज मंथ नेम. अगर शॉर्ट में डिस्प्ले करना है यू कैन यूज 3 टाइम्स M. ओके, you can go back into the table view and you can check the created columns. इसको ओके करो, पहले इसको ओके करो. if you created this column, click OK. इसके फॉर्मेट में हमने क्या दिया है? we want to display the name of month. and how we want to display the name of month? full name. जैसे अभी कौन सा चल रहा है? MARCH, मार्च. ये फुल नेम डिस्प्ले करना है तो यू हैव टू यूज द फॉर्मेट 4 टाइम्स M. अगर 3 टाइम्स M लिखोगे इट विल शो ओनली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट मंथ. एंड जितने भी अभी आपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं, है ना, डैश का यूज करके हमने कॉलम्स क्रिएट किए हैं ना, उसमें डेटा कैसे शो हो रहा है आप देख सकते हो. यू कैन चेक द टेबल व्यू. यू कैन क्लिक द टेबल व्यू. क्लिक. दिख रहा है आपको हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव क्रिएटेड राइट नाउ. कस्टम कॉलम छोड़ के डैश का यूज करके कितने कॉलम आपने बनाए? 3 या 4 बनाए ना, वो सब दिख रहे हैं आपको. कैन यू सी द कॉलम्स? ओके, सो वी आर ऑन दी राइट ट्रैक. हम राइट ट्रैक पे है कि नहीं? ओके, नाउ वन अनदर कॉलम यू हैव टू क्रिएट. मंथ हो गया, मंथ नेम भी हो गया. ओके, अभी हम डे वाला क्रिएट, नहीं, वीक वाला क्रिएट करते हैं. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. हम वीक वाला क्रिएट करते हैं. ओके, आपको क्या करना है? डे वाला क्रिएट किया हमने? नहीं, अभी नहीं, अभी पहले वीक वाला करते हैं. सो ईयर से मंथ हो गया, मंथ से हम
वीक पे आ रहे हैं। सो वीक में अपने कॉलम को नेम दे दो वीक। सेम वे कॉलम टूल्स में न्यू कॉलम ऑप्शन है, न्यू कॉलम को क्लिक करो, न्यू कॉलम विल ओपन। लेकिन उसको फिल भी करना है, एट द सेम टाइम यू हैव टू फिल द डेटा। सो वो डेटा डैक्स क्वेरी से हम फिल करेंगे। सो वीक डे फंक्शन आपको यूज करना है, बिल्ट इन फंक्शन इन पावर बीआई इज कॉल्ड एज अ वीक डे फंक्शन। ओके, एंड select your data set along with the date column, along with the date column. Complete the parenthesis bracket, complete करो, close करो, press OK and go to the table view and check the weekday. Check the weekday. So what it is showing? What it is showing? It is showing the number, right? What it is returning? Function always return something. So this weekday function, what it is returning? क्या रिटर्न कर रहा है बताओ मुझे? वीकडे क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर। हाँ वही तो बताओ ना, नंबर रिटर्न कर रहा है या टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है? नंबर, एंड दैट नंबर इज दी डे, डे वीक नंबर, वीक डे नंबर। सो जैसे कि संडे को डे स्टार्ट हो रहा है, सो संडे इज डे फर्स्ट, मंडे इज डे सेकेंड, ट्यूसडे इज डे थर्ड, अकॉर्डिंगली डे सेवन। ओके, बन गया आपका कॉलम। नाउ यू हैव टू क्रिएट, क्वार्टर वाला बनाया नहीं ना हमने? ठीक है, डे वाला बनाते हैं फिर क्वार्टर देखते हैं, डे एंड डे नेम भी बनाते हैं। सो डे वाला बनाओ पहले। बन गया? बन गया था डे वाला पहले ही। ओके, सो दिस इज द डे वाला कॉलम। क्या करना है आपको? डे फंक्शन आपको यूज करना है, बिल्ट इन फंक्शन। रीनेम योर कॉलम विथ डे। ओके, सेम प्रोसेस आपको करनी है, न्यू कॉलम लेना है। जैसे ही न्यू कॉलम पे क्रिएट करो, क्लिक करोगे, DAX query bar will open. In that you have to write the query, simple query. In that query you have to use the day function, built-in function, and in the parenthesis of this day function you have to select your data set along with the date column, क्योंकि date column से हम extract कर रहे हैं date components. Press OK, press enter एंड देखो टेबल व्यू में जाके देखो, सॉरी, टेबल व्यू में जाके देखो, अभी अभी जो अपने डे वाला कॉलम बनाया उसमें क्या रिटर्न कर रहा है डे फंक्शन? व्हाट इट इज रिटर्निंग? व्हाट इट इज रिटर्निंग? इट रिटर्न द नंबर और इट रिटर्न द टेक्स्ट? it returning the number, means 12, 10, 15, 38. In this way it is returning the day number। मंथ के 30, 31st नंबर डे, सॉरी डेज है, तो उसमें से कौन सा डे है उसका नंबर वो रिटर्न कर रहा है। ओके, अभी डे नेम ले लो। ओके, जैसे मंथ का आपने क्रिएट किया, मंथ नेम का आपने क्रिएट किया ना, उसी तरह से डे नेम का क्रिएट करो। फॉर्मेट फंक्शन आपको यूज करना है, यूज द फॉर्मेट फंक्शन एंड क्रिएट द डे नेम column using the DAX. So click on the new column, click on the new column, DAX query bar will open. In that DAX query bar, first write the name of the column. What is the name of the column? It is the day name. We want to display Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay,
and you have to use the format function to format your day. You want to display the number or you want to display the day name. In the parenthesis of this format function, select your data set along with the date column. Okay, give comma and format your day. In which format you want to display the day? 4 times DDD. मतलब you want to display your day full. जैसे MONDAY Monday. ओके अगर शॉर्ट में लिखना है तो you can use DD or 3 times D. Press OK, press enter and check your data. Check your data in table view. Click on table view and check newly created column. So days are displayed. Actual name of the day. Okay. अभी क्या रह गया हमारा क्वार्टर वाला रह गया. Yes. Come here. So this is the DAX query to create the quarter. So quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. And what is the performance of that particular stock in that particular quarter. So use the method Q is used. This is the method to display the quarter and the format function. And in the format function, you have to select your data set along with the date column to extract the quarters. Direct quarter? नहीं. क्वार्टर का नंबर आ रहे हैं ना. क्वार्टर 1, 2, 3, 4. ओके डिस्प्ले हो गया क्वार्टर. अपने डेटा सेट में जाके देखो. प्रेस एंटर and see your data in table view. हो गया. ओके सी योर डेटा इन टेबल व्यू. हाँ टेबल व्यू में ही हूं मैं. कहाँ पे गया क्वार्टर वाला डेट. So this is the quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. In this way you can see your data. So बहुत सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है. अगर आपको मैन्युअली करना है डेट कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर डेट कॉलम, देन यू हैव टू फॉलो दिस डिफरेंट स्टेप्स. बट अगर डेट कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करना है यू मस्ट हैव द डेट कॉलम इन योर डेटा सेट, देन ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स. अगर आपके हाथ में डेट कॉलम ही नहीं है यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द डेट कंपोनेंट. व्हाट आर दैट डेट कंपोनेंट्स? डे नंबर, डे नेम, क्वार्टर नंबर, देन ईयर, मंथ, मंथ नेम, वीक डे. हाँ सॉरी वीक डे. वीक डे किया ना. अरे मैं फंक्शन का नाम बता रही हूँ रे. ये क्या फंक्शन नेम. वीक में वीक डे फंक्शन. सो ये सब आपको याद रखना है मैन्युअली इफ यू वांट टू क्रिएट एंड एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट्स. ओके नाउ यू आर फ्री
to perform the data analysis on your data. Come to the data visualization in report area. You can design now interactive dashboards. So before starting to design the dashboard, give the title to your dashboard or report. What is the title for your report? How you will give the title? You can use the text box and you can give the title to your report. So Tesla stock analysis and forecasting is the title for my dashboard or the Power BI report. Give the title to your report. Now you have to perform the basic questions. You have to perform the data analysis using the Power BI on your Tesla stock opening and closing prices along with the period data. You can visualize data. So you can check the open and close. You can compare the open and close day wise. You can compare the open and close month wise. You can compare open and close quarters, years. So whatever the components you have extracted or by default you have the date hierarchy, you can select the date component from the date hierarchy or manually you have created the column. You can take that data and you can perform the analysis. Okay. So first I have taken the cards. I have taken the cards and with the help of that cards, what I want to display? I want to display the total volume and average volume. बिकॉज वॉल्यूम पे बहुत सारा डिपेंड रहता है कि कल का ओपनिंग प्राइस क्या रहेगा. स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता होगा डे का वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर कल का ओपनिंग प्राइस बहुत लो में ओपन होगा, बहुत हाई में ओपन होगा या मॉडरेट ओपन होगा, वो डिपेंड रहता है. सो वॉल्यूम आपको चाहिए, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम फॉर दैट पर्टिकुलर डे. अगर स्लाइसर का यूज करके डे वाइज आप चेक करना चाहते हो तो कार्ड्स का यूज करके डिस्प्ले करो एवरेज वॉल्यूम एंड टोटल वॉल्यूम. ओके, कैसे कहाँ पे रहते हैं कार्ड्स? कार्ड्स कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन देखिए अपने विजुअल पेन में, ये ऑप्शन है 1 2 3 लिख के आया है. 1 2 3 is a card feature in the Power BI and that card feature is used to display the numeric data. And in that numeric data you can display the descriptive statistics of that particular column. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? टोटल आता है, एवरेज आता है, मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा, परसेंटेज आ सकता है. सो डिस्प्ले द टोटल बाय यूजिंग द कार्ड्स. डिस्प्ले किया सम ऑफ वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम. ओके, उसी तरह से यू कैन डिस्प्ले, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रही हूं. I can display here the minimum opening and minimum closing I want to display. So मैं क्या कर रही हूँ, उसी कार्ड को, क्योंकि वो कार्ड्स मेरे फॉर्मेटेड है इसलिए उसी कार्ड को मैं कॉपी पेस्ट करके ले रही हूँ. अच्छा, आपने डेटा सिलेक्ट नहीं किया क्या कार्ड में? कार्ड को सिलेक्ट करो. कार्ड को सिलेक्ट कर दिया सबने? कहाँ पे है कार्ड ऑप्शन? विजुअल पेन देखो अपना, विजुअल पेन कहाँ पे है? विजुअल पेन में ये ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 लिख के आया होगा या 2 3 लिख के आया है. दिस इज द कार्ड ऑप्शन. यूज दिस कार्ड ऑप्शन. हाँ, अभी मैं बताती हूँ डेटा. अभी प्लेन कार्ड आया होगा, प्लेन कार्ड में डेटा में से आपको सिलेक्ट करना है वॉल्यूम वाला कॉलम. आपका ये कार्ड सिलेक्टेड है, कार्ड सिलेक्टेड होना चाहिए एंड सिलेक्ट दिस वॉल्यूम डेटा. वॉल्यूम कॉलम को क्लिक करो. वॉल्यूम कॉलम को क्लिक जैसे ही करोगे इट विल शो द टोटल सम ऑफ वॉल्यूम. डिस्प्ले कर दिया, कर दिया.
ओके, उसी तरह से दूसरा दूसरा कार्ड ले लो। दूसरे कार्ड में फिर से आपको वॉल्यूम ही लेना है। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे कार्ड में फिर से आपको वॉल्यूम ही लेना है, लेकिन वॉल्यूम फील्ड को आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे डेटा फील्ड आपको दिखाई दे रही है, आपके इधर राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा नया वर्जन है इसलिए इधर ही दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, ये वाला, ये है फील्ड यहाँ पे दिख रहे। आपने सिलेक्ट क्या किया है, वॉल्यूम को सिलेक्ट किया है। उसका उसको राइट क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए समराइजेशन है ना, बहुत सारे फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। इसमें से एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करो, एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करो तो वो एवरेज डिस्प्ले कर देगा। डेटा फील्ड जो आपने सिलेक्ट किया है उसको राइट क्लिक करोगे तो उसके फंक्शंस दिखाई देंगे, उस फंक्शन में से एवरेज को सिलेक्ट करो। हो गया? हो गया। अभी यहाँ पे फिर से वही कार्ड लेना है। कार्ड में मीन एंड मैक्स आपको डिस्प्ले करना है। मीन एंड मैक्स, अभी मीन एंड मैक्स वॉल्यूम का कर सकते हो, वही सेम कॉलम लेना है, वॉल्यूम कॉलम ही लेना है। उसके फील्ड में राइट क्लिक करो तो आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। फील्ड को राइट क्लिक करो, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। क्लिक करो मिनिमम पे, सो मिनिमम वैल्यू, इट विल शो द मिनिमम वैल्यू। फिर दूसरा कार्ड सेम लेना है आपको, सेम कार्ड में आपको दिखाना है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वॉल्यूम। अगेन राइट क्लिक on that data field and you can see the functions. From that you can select the maximum volume. So minimum maximum volume डिस्प्ले करके हो चुका है। अभी और दो तीन कार्ड्स आपको लेने हैं। और दो तीन कार्ड्स आपको लेने हैं, उसमें अभी आपको ओपन एंड क्लोज वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ओपन एंड क्लोज, हाई एंड लो, चार वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ओपन एंड क्लोज के लिए भी कार्ड डिस्प्ले करना है, हाई एंड लो के लिए भी कार्ड डिस्प्ले करना है। सो यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द कार्ड्स और यू कैन टेक अनदर कार्ड्स। मैं कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सो आई विल गेट अनदर कार्ड एंड इन विच नाउ आई एम सिलेक्टिंग, इन दिस कार्ड आई एम सिलेक्टिंग द डेटा। कौन सा डेटा मैं सिलेक्ट कर रही हूँ? Instead of selecting the volume, I am selecting the open price. Okay. So open में यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, कॉलम को सिलेक्ट करो। अगर आपको समराइज नहीं चाहिए, प्लीज लिसन, ओपन को न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए ऑटोमेटिकली वो समराइज करके दे रहा है, समेशन दे रहा है। अगर आपको समेशन नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहां से इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम टूल्स विल ओपन एंड फ्रॉम दैट कॉलम टूल्स यू कैन सिलेक्ट डोंट समराइज। डोंट समराइज को सिलेक्ट करो। ओके, and now you have to select the average price. Select the average price. Okay, average open 73. ओके, डोंट समराइज आपको करना है, डोंट समराइज। वो कॉलम
समेशन ऑटोमेटिकली करके दे रहे हैं आपको पावर बीआई। तो हमें क्या चाहिए, एक्चुअल उस रो की खाली ओपन प्राइस चाहिए, समेशन नहीं चाहिए। इसलिए आपको डोंट समराइज करना है। कहाँ पे, कॉलम को सिलेक्ट करो। कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना था, ओपन। ओपन को डिस्प्ले कर रहे हैं ना हम। और कॉलम टूल में जाके यहाँ पे देखिए डोंट समराइज ऑप्शन है। डोंट समराइज मतलब पहले तो समेशन होगा, सम होगा, उसको आपको हटाना है और डोंट समराइज करना है। और डोंट समराइज करने के बाद आपको इसको लेना है एवरेज, एवरेज डिस्प्ले करना है। ओके, दूसरा कार्ड वही सेम ले लो। क्लोजिंग प्राइस के लिए मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रही हूँ। हाँ, यही मैंने एवरेज डिस्प्ले कर दिया, डोंट समराइज पहले कर दिया मैंने, फिर उसका मैंने एवरेज डिस्प्ले कर दिया। अभी वही सेम कार्ड में ले रही हूँ। सेम कार्ड में मैं क्लोजिंग प्राइस ले रही हूँ। तो ओपन वेरिएबल को हटा के मैं अभी क्लोजिंग वेरिएबल ले रही हूँ। सो आई एम सिलेक्टिंग द क्लोज वेरिएबल। कहाँ पे है क्लोज, यहाँ पे है। और ये क्लोज भी बाय डिफॉल्ट समेशन डिस्प्ले कर रहा है। सो आई डोंट वांट टू डिस्प्ले द रो समेशन, है ना। इंडिविजुअल मुझे क्लोज प्राइस डिस्प्ले करना है, आई डोंट वांट टू समराइज इट। So what you have to do, you just select that column, then automatically column tools will open. From that column tools, you have to select, by default it is sum because it is numeric variable. So you have to select don't summarize. Click on don't summarize. Okay. And from the variable, from the data field, what you can do, you can select the average. Average. हाँ, ये ओपन एंड क्लोज का हो गया। अभी हाई एंड लो का बताती हूँ मैं। हाई एंड लो का बताती हूँ, वही सेम चीजें रिपीट करना है बाकी सभी फील्ड को। सो मैं कार्ड ले रही हूँ, सिलेक्ट द कार्ड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि वही सेम फॉर्मेटिंग चीजें मैं ले रही हूँ। सो इसमें मैं अभी ले रही हूँ हाई फील्ड को। सो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है, तो ओपन वाला डेटा सिलेक्टेड है, उसको मैं हटा रही हूँ। दिख रहा है आपको, इसको मैं हटा रही हूँ। अभी मैं ले रही हूँ हाई वाला डेटा। सो आई एम क्लिकिंग ऑन हाई एंड आपको समझ में आ रहा है हाई जो है न्यूमेरिक कॉलम है। सो बाय डिफॉल्ट पावर बीआई विल डिस्प्ले द समेशन, टोटल करके दे रहे हैं आपको। लेकिन टोटल नहीं चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इंडिविजुअल हाई प्राइस चाहिए। सो आपको कॉलम टूल में जाके उसको डोंट समराइज करना है। सो वो कैसे करोगे, आपको उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सो मैंने राइट साइड में जो मेरा हाई कॉलम है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं सिलेक्ट इसको करूंगी, वो कॉलम टूल्स अवेलेबल करके दे देगा। कॉलम टूल्स अवेलेबल हो गए। फ्रॉम दैट कॉलम टूल्स यहाँ पे देखिए समराइजेशन ऑप्शन है। समराइजेशन टूल्स में दिख रहा है, उसका ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करो। From the drop down arrow, you have to select don't summarize. Click on this don't summarize. Oh, okay, it is set to now don't summarize. It will not display the row summation. And from the data field, you have to select the average. So I am displaying the average. Okay, average high. It is showing average high. उसी तरह से आई एम अगेन क्रिएटिंग द कार्ड फ्रॉम द फॉर द लो प्राइस ऑफ दैट स्टॉक। सो आई एम सिलेक्टिंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी and in place of high, now I am selecting the low. So selecting the low, and same way
Low is again numeric column, so by default it is showing the summation and I don't want that summation. So you have to select that column. Then column tools will available. From that column tools you have to select don't summarize option. Okay. And from the data field, जो लो वाला डेटा है ना, डेटा फील्ड में जाके राइट क्लिक करके उसको एवरेज में डिस्प्ले कर सकते हो. सो डिस्प्ले इन द एवरेज. ओके, सो इतने सारे कार्ड्स हमने डिस्प्ले कर दिए हैं. द पर्पज ऑफ कार्ड्स टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन on your particular column. Okay, now you can visualize your data on the basis of the period, the date component, such as the month data, day data, quarter data, or year data. You can display on the basis of the date component, and you can select any visual option such as bar chart, column chart, or pie chart. So what you have to display in this chart, what I have done, I have selected the day name. First I have selected the column chart. So go to the visual pane and select the column chart. So this is the column chart. When you click, it will appear on your empty area of the report. Okay. And now you have to select the fields for the column chart. Okay, what fields you have to select for the column chart? So I have selected the day name on the x-axis. You can see here my fields. You can see the fields I have selected for the column chart. So on the x-axis, I have selected the column name. So x-axis, you can see the day name. Day name. So from the data, you can check the day name or drag and drop that day name on the x-axis field. Okay, and on the y-axis, what I have done, I have selected the open and close. So I want to check day wise what is the open and what is the close. Okay, so select two fields. So simultaneously I want to check. It is differentiated by different colors. Light blue, dark blue. Both are blues, navy blue and कौन सा है sky blue. So two fields I have selected. You can display the average for the open and you can display the average for the close. By the day name, I have displayed my data to present the information. Day wise, what is the on what price that stock is opened and on what price that stock is closed. In this way, you can perform by month wise, just like the day you have presented your data, the open and close price day wise, you can display it month wise. So select the month name field, month field. In the second chart, you have to select the month name or month column. So month wise, you can display the opening and closing price of that stock. Same way, you can take another column chart and in that column chart, you can keep the opening and closing data same on the y-axis, but you have to change the fields. Instead of day, instead of month, you can select the quarters.
यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बाय द ईयर वाइज ऑल्सो यू कैन डिस्प्ले. So take one another column chart, and in that column chart you can perform the analysis year wise. Okay. So you can select here the year. On x axis you can select year. Okay. So this is the year wise data. Okay. So in this chart I have displayed the data year wise. Select year. So this year wise data is not visible properly. You can apply the filter. You can apply the filter on this year wise data. How you can apply the filter? आप फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हो? ये पूरा इतने सारे ईयर्स है तो इसमें नहीं बैठ रहा है. आप यू कैन डिस्प्ले ओनली टॉप 5 years by applying the filter. So you can select the years based on top n. So you can apply the filter. मैंने कहाँ पे क्लिक किया? देखिए ईयर फील्ड आएगी, आपका ग्राफ सिलेक्टेड होना चाहिए. So my graph is selected. Then I will come here in the filter pane. In that filter pane, I will select the year filter. I want to select the data year wise. In that, I will select the top n field. In top n, I will give top 3. And top 3 on what basis you want to display? On the basis of high or on the basis of low or on the basis of the volume, any numeric field you can drag and drop. So I am selecting here on the basis of open. I want to filter my data. So I am dragging that field and placing here to apply the filter. So देखिए, I want to filter the years on the basis of top years. टॉप n सिलेक्ट किया. टॉप n में 3 years डिस्प्ले करना चाहती हूँ. 3 years में on what basis I want to display 3 years? So I have selected the open price and just apply. ओके यहाँ पे 3 year. इसको जैसे ही आप थोड़ा सा ग्राफ को चार्ट को बड़ा करोगे या फुल स्क्रीन में लेके जाओगे आपको ये दिखाई देगा. How I have opened this chart in a focus mode or full screen. So go back again. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा चार्ट ओपन है, सॉरी सिलेक्टेड है. इस चार्ट में ये ऑप्शन है फोकस मोड. So click on that focus mode to see your data in detail. So open it. So I have selected only the top years. That's why it has shown the data in this way. Okay. Now I am selecting some. ये तो बेसिक हो गया, डेटा प्रेजेंट कर दिया मैंने. ईयर वाइज, month wise, day wise, quarter wise, I have presented my data from the Tesla stock. Now I will select some slicers. So select some slicers from your visual pane. कहाँ पे आपका visual pane? So from that visual pane, select the slicers. So I am selecting slicers for the year, month, day, and quarters. So you can see here. So जैसे ही आप स्लाइसर को क्लिक करोगे, ये है स्लाइसर. इस स्लाइसर में मैं फील्ड डाल रही हूँ ईयर वाला डेटा. ये मेरा ईयर वाला डेटा है, देखिए सिलेक्टेड है.
सो इस स्लाइसर में मैंने डेटा प्रेजेंट किया है ईयर। किया आपने डेटा, आ गया। ये ईयर वाला डेटा है, लेकिन ये ईयर वाला डेटा मैंने फॉर्मेट पेन में जाके फॉर्मेट किया है एज पर दी टाइटल्स। सो ये स्लाइसर को फॉर्मेट में जाके उसको फॉर्मेट करो। स्लाइसर सेटिंग में जाओ। स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है देखिए। वर्टिकल स्लाइसर चाहिए आपको, वर्टिकल डिस्प्ले कर सकते हो। टाइटल चाहिए, टाइटल डिस्प्ले कर सकते हो। आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, टाइटल। सो इन दिस स्लाइसर आई हैव यूज दिस स्लाइसर टाइटल। ओके, इसी तरह से आप दूसरा स्लाइसर मंथ के लिए ले लो। मंथ में भी फॉर्मेट में जाओ, स्लाइसर के फॉर्मेट में जाओ। ये स्लाइसर मैंने दूसरा ले लिया है मंथ के लिए। फिर ये स्लाइसर मैंने ले लिया है डे के लिए। फिर ये स्लाइसर मैंने ले लिया है क्वार्टर्स के लिए। ओके, now last point I want to discuss here, it is about the forecasting of the data। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, साइज बढ़ा रही हूँ। ओके, so you have to forecast the data, you have to perform the data analysis on the historical data, and on the basis of historical data you can predict for the future। फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हो। सो उसके लिए आपको क्या लेना है, लाइन चार्ट लेना है। सो दिस इज द लाइन चार्ट। कहाँ पे देखिए लाइन चार्ट, ये है लाइन चार्ट। सो सिलेक्ट द लाइन चार्ट इन योर एम्प्टी एरिया ऑफ द रिपोर्ट। Okay, and in that line chart you can see what the field I have selected. So on x-axis I have selected year, on x-axis I have selected year, and on y-axis I have selected the volume. So I want to forecast my data on the basis of volume, year wise। So first select the line chart। आपके विजुअल पेन में लाइन चार्ट है, उसको क्लिक करो। वो आपका रिपोर्ट एम्प्टी एरिया में आ जाएगा, ग्राफ एम्प्टी एरिया में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फील्ड को सिलेक्ट करना है। सो फील्ड को कैसे सिलेक्ट करोगे, फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको लेना है ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम योर डेटा यू हैव टू सिलेक्ट द ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। सो सिलेक्ट द डेटा। ये दिख रहा है आपको, आ गया इतना, लाइन चार्ट बन गया। कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, कम ज्यादा, ऊपर नीचे, इंक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग, जो कुछ भी है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज और डिक्रीज, वो क्या दिखा रहा है, लाइन चार्ट, लाइन थ्रू पैटर्न जनरेट करके दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम डेटा। कौन से डेटा के बेसिस पे वो दिखा रहा है, वॉल्यूम डेटा के बेसिस पे दिखा रहा है। ओके, उसी लाइन चार्ट के ऊपर, ये तो हो गया हिस्टोरिकल डेटा के पैटर्न्स हो गए। अभी उसी डेटा के ऊपर आपको परफॉर्म करना है प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग करना है। सो फोरकास्टिंग करने के लिए आपको करना क्या है, बंद कर सगळे।
ओके, इसके डेटा फील्ड में जाके फॉर्मेट में जाओ इसके। फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट फील्ड में जो ओल्डर वर्जन जो यूज कर रहे हैं, ओल्डर वर्जन जो यूज कर रहे हैं, बंद कर, ओल्डर वर्जन जो यूज कर रहे हैं ना, उनको मैग्नीफाई सिंबल होगा यहाँ पे। पावर बीआई का ओल्डर वर्जन जो यूज कर रहे हैं उनको क्या करना है, मैग्नीफायर सिंबल है फॉर्मेट पेन के बाजू में राइट कॉर्नर में मैग्नीफायर ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। उसको क्लिक करने के बाद एट द बॉटम फोरकास्ट ऑप्शन इज देयर, एट द बॉटम स्क्रॉल डाउन करो, फोरकास्ट मेक इट ऑन, उसको ऑन करो। जैसे ही उसको ऑन करोगे ये फ्यूचर प्रिडिक्शन वो बता रहा है। और जो नया वर्जन यूज कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग न्यू वर्जन? सो न्यू वर्जन में आपको फॉर्मेट पे में नीचे जाना है, प्रॉपर्टीज वाला विजुअल वाला ऑप्शन है ना, विजुअल वाले ऑप्शन के नीचे एट द बॉटम फोरकास्ट ऑप्शन इज देयर, यू हैव टू जस्ट मेक इट ऑन एंड उसकी उसके एरो को क्लिक करो, उसके एरो को क्लिक करो, इट विल शो दी फोरकास्टिंग ऑप्शन। सो बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग 10 ईयर्स, आगे के फ्यूचर के 10 ईयर्स के बारे में, हिस्टोरिकल ईयर जहां पे एंड हो रहा है वहां से आगे के 10 ईयर्स के लिए बाय डिफॉल्ट वो प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है। आप उसको ईयर्स को कम ज्यादा कर सकते हो, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ओनली 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, so you can make the changes and just click on apply। तो जैसे ही आप करोगे अप्लाई, ये प्रिडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ फोरकास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। सो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ईयर वाइज वी वांट टू प्रिडिक्ट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेस्ला स्टॉक। हमारे हाथ में खाली टेस्ला स्टॉक के लिए डेटा है, डे वाइज डेटा है, तो हिस्टोरिकल डेटा को रेफर करके it is able to predict about the future। and how many years by default you can predict? By default you can predict for 10 years and you can increase or decrease the years, that is prediction length or the forecasting length। So this is about the future, by using the Power BI you can predict about the future। So same way, this is the exercise to you, just like the volume you have predicted for the future years, you have to predict the open price, the close price, the high and low। What you have to predict, this is the exercise to you। One volume data I have predicted for the respective years, for future years also, but now you have to perform the prediction or forecasting on your high data, on your low data, on your opening data, on your closing data। So you are now able to perform the prediction। I hope you understood all these things। So new things I have explained here, that is called how you can extract the date components from the date column।